नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, हम आपको बता दें, आज जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है वो है मोहम्मद अब्दुल रसूल साहब, जो आज पुलिस कांस्टेबल के जो इम्तहानात मुनक़िद होते हैं उस पर तफसीली रोशनी डालेंगे। हम 99 टीवी स्टूडियो में दिल की गहराइयों से मोहम्मद अब्दुल रसूल साहब का खैर मक़दम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूल साहब, आज का जो मौजू है जिस पर आप और हम बात कर रहे हैं वो ये कि पुलिस कांस्टेबल की इम्तहानात जो मुनक़िद होते हैं वो किस तरीक़े के होते हैं। तो आपसे पहले सवाल यही है हमारा कि इन पुलिस कांस्टेबल्स की जो मुलाजिमत है, जो नौकरी है, जो जॉब है, उसके लिए जो कैंडिडेट्स कोशिश करते हैं वो एग्ज़ामिनेशन का तरीक़ा क्या है, थोड़ा इस बारे में आप ज़रूर बताएं। पहली बात तो whenever the notification is going to be held, at that time only the people have to apply for that, because the notification is the first basic step that each and every candidate should be remembered. And next thing is that notification will be going to be held, going to become very soon, and apart from that they should be mentally prepared for the each and every task, because after notification the candidate will get very less time to do the things. So this is the basic. आप ज़रूर ये बताएं कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफ़िकेशंस होने चाहिए, और इसके तरीक़ेकार पे भी ज़रूर आप रोशनी डालें कि इम्तिहान का तरीक़ा क्या है, गवर्नमेंट किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और किस तरीके से ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो इसमें क्वालिफिकेशन, पहले बेसिकली क्वालिफिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हियर दिस अ बेसिक क्वालिफिकेशन इज़ दैट इंटरमीडिएट. For the people who are applying for the constable job, they should complete at least the intermediate level, and they should get at least good marks. Average marks should be the basic thing. Then after completion of intermediate, they can easily apply for that whatever the notification is going to be come. And apart from this, if the candidate is applied for that particular thing, and now the next task is going to become as a physical fitness. Physical fitness is the basic thing. Like we will talk as an entrance exam, there is the same thing. Physical fitness is also. In this, everything will be focused. It's about your height, it's about your running, and it's about your each and every aspects they are going to be checked. When if you are, go through these aspects, and if you qualify this particular thing, then you will going to become about different exam like written exams. Rasul Saab, mostly we have seen that the candidates who apply for these jobs, especially these police constable jobs, they just focus only on physical fitness. They don't even focus on written examination, which is also one of the very basic requirement what the government required it is. Can you just say a few words on this? Yeah, it's see the first every candidate have the basic motto that to first clarify and get clear in the entrance exam, but the simultaneously they have to focus on the written exam also, because at the final they are going to select on the written based exam itself. Merit candidate is going to be get selected for the constable posts. आज आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाते ये भी सवाल करते हैं कि आप ये ज़रूर बताएं कि इस एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से ज़हनी तौर पर ये जो कैंडिडेट्स हैं इनको तैयारी करनी चाहिए। See, actually this entire pattern is classified into three categories. One is general studies, and another one is the general mental ability or aptitude test भी कहा जाता है, and the final is English, because these three are most important for this particular aspect. So can you just go in detail about like general studies means what subjects they need to focus, they need to learn about it to prepare for this examination? Yeah, in mostly because everybody have to focus a lot on general studies. In general studies, there will be a national and international current affairs is going to be focused, then current issues. Then afterwards the Indian history and Indian national movement. Then apart from, because we are focusing about the state, so that's the reason we have to focus on the state history also, that is Telangana history, and even the economics and the geography, and even the science and technology, general science, everything these are the basics areas where that every person have to focus. See, only there is the communication skill, there is a few questions, so especially they will focus about the comprehensive passengers,
where the particular they want to check whether the person can able to communicate easily or not, whether he can able to understand the basic English or not. That is the basic thing, and it's very easy. If the person belongs from English medium, he can clear it very easily that particular. See, English में अगर देखा गया तो एक पैराग्राफ देंगे आपको पैसेज के तरह पे, उसमें ABC 3 सेक्शंस होंगे, इसमें से किसी एक सेक्शन को आपको समझना है. ऑलमोस्ट ऑल आंसर तो पैराग्राफ में ही होगा, मगर द थिंग इज दैट यू हैव टू सर्च दैट वेदर दैट आंसर इज देयर और नॉट. सो इसके लिए क्या होता है, अगर बच्चा इंग्लिश में अच्छी परफेक्शन है, जब भी वो बच्चा उस लैंग्वेज को समझ के उस आंसर को ईजिली दे पाएगा. जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कहा जाता है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, आजकल बच्चे सोच रहे हैं कि जनरल स्टडीज़ कंप्लीट कर लिए और इंग्लिश में कमाना है, ऐसा नहीं. क्योंकि स्पेशली अगर हम ये देखेंगे कि एप्टीट्यूड टेस्ट भी सेकेंड विंग है, तो उसमें भी क्या होता है, आपको कई तरीके के इंटरमीडिएट लेवल का ही मैथ्स रहेगा, 10th इंटरमीडिएट लेवल का मैथ्स, जिसमें आपको गो थ्रू करना होगा और बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि कोई टफ नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेंगे टाइम एंड डिस्टेंस है, मेजरमेंट्स है एंड हाइट्स है, यानी तो आपको जैसा कि क्लॉक्स है या डिफरेंट और इस तरीके के कई एप्टीट्यूड 20 to 15 चैप्टर्स है, वो अगर आप बेसिक नॉलेज अगर आपके उसके पास रहे तो दैट्स एनफ फॉर. मुख्तलिफ नौजवान की अलग अलग सोच होती है. बहुत सारे नौजवान ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट नौकरी मिलने वाली नहीं है, लेकिन जो हुकूमत की ये जो कोशिशें हैं, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल के जॉब, इसके बाद भी काफ़ी और जो है वैकेंसीज आने वाले हैं, जिस पे हम कभी और गुफ्तगू करेंगे. लेकिन आज चूँकि हम पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ामिनेशन पर बात कर रहे हैं, उसके सिलेक्शन पर बात कर रहे हैं, तो आपके नज़रिए से आपकी राय क्या है? ये नौजवानों की ये जो सोच है कि पुलिस मीन्स गवर्नमेंट जॉब इतना आसान नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल है हासिल करना, तो इसमें आप क्या मैसेज देंगे नौजवानों के? सी, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है, हर चीज़ आसान होती है. सिर्फ एक चीज़ होता है कि अपन किस तरीके से उसको प्रिपेयर करते हैं. प्रिपरेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आजकल नौजवान एक बार देखते, कोशिश करते, दूसरी बार कोशिश करते, उसके बाद पीछे हट जाते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ क्या होता है, उन लोग अपने आप को सही तरीके से प्रिपेयर नहीं होते एग्ज़ाम के लिए. तो बेसिक चीज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे, पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आपको ये जॉब हासिल करना है किसी भी तरीके से. अगर जब आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ईच एंड एवरीथिंग आपके वे में ही जाएगा. इसके लिए क्या होना चाहिए, आप अपने आप को फर्स्ट डिसाइड करो कि मेरे को ये एग्ज़ाम लिखना है और इसके हिसाब से मेरे को तैयारियां करना है. जैसा आपका फिजिकल फिटनेस एग्ज़ाम्स ख़त्म होते कि रिटर्न एग्ज़ाम्स को फोकस देना चाहिए. अगर मैं जो कहना चाहता हूँ कि कई बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं और जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि फिजिकल फिटनेस के साथ जिस तरीके से हम बिगेन करते हैं, उसके साथ ही साथ अगर हम रिटर्न एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर हो गए तो हमारे इंशाल्लाह सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत आसानी होगी. क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मेरिट बेस है. अगर आप 30 मार्क्स आउट ऑफ 30 डालेंगे, 20 ला जाएंगे, इस तरीके से क्वालिफाई नहीं होता है. मेरिट बेस के ही उस पर क्वालिफिकेशन होता है और उसी बेस पे ही कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है. बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि जस्ट पासिंग का ये बड़ा अजीब रुझान है, एक अजीब किस्म की नौजवानों में सोच है. कोशिश कर लें कि 35 ला लें, क्वालिफाई हो गए, ये काम नहीं आने वाला है. तो जैसा आपने बताया कि कॉम्पिटिटिव रहेगा, बिल्कुल उसके अंदर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा. तो आप ज़रूर ये बताइए कि नौजवानों को आखिर मेरिट बेस्ड कॉम्पिटेंट अपना जो है उसके अंदर मुजाहरा अगर करना है, उनको परफॉर्म करना है, तो क्या ऐसे जो है उनको तैयारी करनी चाहिए? सिर्फ पहले एग्ज़ाम के हिसाब से देखा गया तो ये 200 मार्क्स का पेपर है और ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है. तो इसमें क्या होता है, मेरिट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आप क्या करना है, एटलीस्ट 100 से 110 के बीच में अगर लेके आए, दैट्स द गुड मार्क्स होता है इसके. अगर 100 एटलीस्ट आपको 100 भी आ जाएंगे तो आपको मेरिट बेस में ही सेलेक्ट किया जाएगा. और उसके बाद तो आप लोगों को मालूम है हर एक प्रोसीजर कैसे आपको डिफरेंट कैटेगरीज में सिलेक्शंस भी होते हैं. लेकिन मैं कहता हूँ कि हर एक फॉरगॉट अबाउट द रिजर्वेशन और जनरल कैटेगरीज, जस्ट फोकस अबाउट द वन बेसिक थिंग दैट कि हमारे एटलीस्ट 100 मार्क्स अटेंड लेके ही आना है अगर आपको जॉब चाहिए तो. साहब, इन इम्तहानात में, एग्जामिनेशंस में जो मुसाबिकती इम्तहानात होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स भी होंगे, तो ये बताइए कि टाइम फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. तो अमूमन ये देखा गया है कि नौजवान टाइम मैनेजमेंट पर तवज्जो नहीं देते. तो इस इम्तिहान को मद्देनज़र रखते हुए आप टाइम मैनेजमेंट पर थोड़ा सा ज़रूर बताएँ.
हाँ, पहली बात जब आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, जब पेपर आपके सामने रहा, तो पहले बेसिक चीज़ आप ये देख लीजिए कि आपकी कमांड किस तरफ है। अब मेंटल एबिलिटी मतलब मैथ्स के तरफ ज़्यादा परफेक्ट है, या नहीं तो आप जनरल स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा परफेक्ट है, वो देख लीजिए। उस हिसाब से जिस एरिया में पहले आप स्ट्रॉन्ग है, उस चीज़ को फर्स्ट कंप्लीट करने की आप पूरे से कोशिश करिए। और बाकी का जो डिफरेंट टास्क रहता है उसको आप टाइम दे सकते हैं, क्योंकि अगर 3 आवर्स का पेपर है, अगर आप 1.5 आवर अगर आप अपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग जनरल स्टडीज़ पे आप लाएंगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। और उसके बाद बाकी का जो 1.5 आवर है, अगर आप उसको एप्टीट्यूड में अगर डाल दिए, उसमें से अगर आप एटलीस्ट 30 आंसर्स भी कर लिए तो दैट्स एनफ। और यही एक चीज़ चाहिए टाइम मैनेजमेंट के लिए। पहले आप ये देखिए कि क्या आपको करना है। फर्स्ट आप ये करिए कि जनरल स्टडीज़ के ऊपर देखिए कितने बिट्स है और उसको कितनी जल्दी से जल्दी आप उसको अदा कर सकेंगे, कंप्लीट कर सकेंगे। उसके बाद आप ये देखिए कि मैं एप्टीट्यूड टेस्ट में मैं कितना परफेक्शन हूँ और कौन से प्रॉब्लम्स मेरे को आते, उस प्रॉब्लम्स को आप जल्द से जल्द करने की कोशिश कीजिए। और सवाल रहा इंग्लिश का, तो इंग्लिश में तो आप लास्ट के 20 मिनट्स भी आप अगर स्पेंड कर लिए तो दैट्स एनफ हो जाएगा उसके लिए। साउथ जोन पुलिस हैदराबाद ने एक अच्छी कोशिश की है, काफ़ी बड़े नौजवानों को मुख्तलिफ जो है मुकामात पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप किस तरह से पुलिस कांस्टेबल की नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या कितना अच्छा स्टेप है, इस ताल्लुक से आप ज़रूर बताएं। ये तो एक पॉजिटिव अटेम्प्ट दिया गया है पुलिस वालों की तरफ से, क्योंकि उन लोगों को पता है कि आजकल के नौजवान इधर उधर भटक रहे हैं, उन लोगों को सही तरीके की प्रॉपर कहीं पे भी सही एजुकेशन नहीं मिल रही। इसी तरीके से ये लोग सोचे कि ठीक है कि हमको इस तरीके को ही लेके जाना है, और इसके लिए उन्होंने कई जगह पे कई तरीके के प्रोग्राम स्टार्ट करे जहाँ पे फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है कांस्टेबल्स के लिए। और अगर बच्चे वहाँ पे फोकस करेंगे, वहाँ पे जाएंगे और तो वहाँ पे अगर जाके अगर कुछ सीखेंगे तो वो उन लोगों के लिए बेस्ट होगा। तो ये थे नाजरीन मोहम्मद अब्दुल रसूल साहब, जो पुलिस कांस्टेबल ट्रेनिंग, एग्जामिनेशंस और उसकी तैयारी पर जो है तफसीली रोशनी डाल रहे थे। ऐसे ही दिलचस्प प्रोग्राम 99 टीवी आपकी खिदमत में पेश करता रहेगा। देखते रहिए 99 टीवी, आपका अपना पसंदीदा चैनल।